Good morning, friends. Now you are again welcome in online classes of chemistry. Here, Lomesh Sharma. After dihalogen derivatives, now our topic is trihalogen derivatives. Okay, those compounds in which number of halogen atoms are 3. Trihalogen derivatives. Okay, so such type of compounds are two compounds, chloroform and iodoform. CHCl3 and CHI3. Their names are chloroform and iodoform. Very well known name is chloroform, but maximum students not know about iodoform. Okay, yes, both compounds are formed by the reaction which is known as haloform reaction. Okay, chloroform and iodoform, commonly they are called haloform, and these are synthesized by haloform reaction. So now what is the haloform reaction by which these compounds are synthesized? Haloform reaction, this reaction is the compounds having structure show haloform reaction. That means those compounds which have such type of structure, this one and this one, they show haloform reaction, and by these compounds we can form chloroform and iodoform. Okay, first one is alcohol. Second one is ketone. So alcohol and ketone, such type of alcohol and ketones are show haloform reaction. Clear? Now what is the haloform reaction? Listen, first of all, where R is alkyl group, you know very well, and hydrogen atom, compound having structure A convert into B by oxidation. Compound A convert into B by oxidation reaction, and when compounds having structure A or B are heated with halogen or alkali gives haloform reaction. तो होगा क्या, इसके अंदर कंपाउंड ए जो है वो कंपाउंड बी में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ में. ओके, और कंपाउंड ए और बी ये दोनों हेलोजन के साथ में इनको हीट किया जाए, मतलब कि X2 के साथ इनको अगर हीट किया जाए, देन दे फॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन. क्लियर? वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे. देखिए किस तरीके से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे. दैट इज अ स्टेप्स टू शो हेलोफॉर्म. दीज रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स. देखिए किस तरीके से, व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स बाय विच दे फॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शंस. That one is alcohol. In first step, that one is alcohol. Here is bond. Okay, CH3 CHOH. Secondary alcohol है. This one is a secondary alcohol, 2-degree alcohol, compound A. That one is compound A. Reacts with halogen X2. When it heated with halogen X2, it form ketone. Oxidized into ketone, HX is removed. Clear? OH, इस OH से एक H रिमूव होगा और इसने HX का फॉर्मेशन किया है, और that one is converted into ketone. CH3 C double bond OR कीटोन में कन्वर्ट हो गया है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, नाउ अगेन in the axis of halogen 3x2. Okay, again this ketone react with 3x2 to form another type of compound which is known as CX3. that is a difference. हेलोजन एटम कितने हैं? 3x2. ओके, यहाँ है CH3. यहाँ पर CH3 के तीनों हाइड्रोजन एटम जो हैं हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं, और यहाँ आ जाता है CX3. ओके, तो ये सेकंड स्टेप में जो कंपाउंड था CH3CO C double bond OR, that one it converted into CX3 C double bond OR. that is the second step. अगेन यहाँ से भी HX क्या है, रिमूव हो रहा है. ये दोनों 2 स्टेप्स हो गई. थर्ड स्टेप देखिए क्या होती है. थर्ड स्टेप में ये जो सेकंड स्टेप का कंपाउंड है CX3. ओके, CX3 C double bond OR, that is the reaction with alkyl KOH. ओके, KOH की नेचर एल्कलाई होती है. इसके साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमें CX3 ये वाला कंपाउंड और एक H ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं. ठीक है, और RCOOK ये एक सॉल्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिसको हम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट कहेंगे. ओके, और CH3X H के साथ रिएक्शन करके हेलोफॉर्म बनाता है CHX3. जिस तरीके से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था, CHCl3. आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था, CHI3. ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CHX3. अगर हम हेलोजन Cl लेंगे, अगर हम हेलोजन I लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दैट रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स. नॉट वेरी टफ, बट प्रैक्टिस इज कंपल्सरी. नाउ व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन. ओके, दैट इज द रिएक्टेंट. जो आपने एल्कोहल लिया था 4x2 काम आया फर्स्ट स्टेप में, 1x2 सेकंड स्टेप में 3x2 काम आया, और KOH का हमने यूज़ लिया एल्कलाइल KOH का. हेलोफॉर्म इज फॉर्म, 5x का फॉर्मेशन हुआ, इन सब जगह पे प्लस आएगा बेटा. ठीक है, एंड CH3 ब्लॉक ये बना था, 5x का फॉर्मेशन हुआ, HX जो के फॉर्म में बाहर ये वाटर का फॉर्मेशन हुआ. इस तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन से हम हेलोजन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. अब हम दोनों कंपाउंड्स को एक एक करके पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज नॉन एज ट्राइक्लोरोमीथेन. That is the IUPAC name of this compound. Sorry, that is the IUPAC name. Just a minute.
CHCl3, इसका IUPAC नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन. एंड क्लोरोफॉर्म, वी कैन ऑल्सो से ट्राइक्लोरोमीथेन. इंस्टेड ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन वी कैन ऑल्सो से 111 ट्राइक्लोरोमीथेन. 111 ट्राइक्लोरोमीथेन. क्लियर? नाउ व्हाट इज द लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, तो उसकी एक प्रिपरेशन है लेबोरेटरी मेथड. क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इथाइल अल्कोहल और एसीटोन ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन. ओके, क्लोरोफॉर्म को किसके साथ? क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इथाइल अल्कोहल और एसीटोन. इथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अगर ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट किया जाए, देन दिस रिएक्शन इज फॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन. इससे हम क्या बना सकते हैं? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं. देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट्स IUPAC नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर. Okay, that is a bleaching powder. Reacts with water. When bleaching powder reacts with water, it form calcium hydroxide. Okay, nascent ऑक्सीजन क्लोरीन निकल जाएगी. ओके, कोई भी नेसेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो हाईली रिएक्टिव होता है. ये बात आप ध्यान रखना. नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्लोरीन. देन नेसेंट क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO. एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है CHO और साथ में एक कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड. तो जब ब्लीचिंग पाउडर ने वाटर साथ रिएक्शन की तो इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आवर रिक्वायरमेंट इज नेसेंट क्लोरीन. नाउ alcohol CH3CH2OH reacts with nascent chlorine, it gives acetaldehyde. यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना. एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH होता है. ठीक है, इस तरीके से इसने एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया सेकंड स्टेप में. थर्ड स्टेप में देखो क्या होता है. यही एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, यहाँ पर CH3 आएगा. CH3CHO अगेन एक्सिस ऑफ नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अब बनाया इसने क्लोरल का फॉर्मेशन किया. इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल, CCl3CHO. ध्यान रखना, आगे भी यही कंपाउंड काम आएगा. क्लोरल CCl3CHO एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को बनाने में काम आएगा. CCl3CHO दैट इज अ क्लोरल. ओके, अब देखिए, क्लोरल फॉर्म्स क्लोरोफॉर्म ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इस क्लोरल की रिएक्शन अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ऊपर बना था CaOH का होल ट्वाइस, उसके साथ अगर हम करा के इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा. देखो क्या हो रहा है इसके अंदर. ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. ये है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और OH का होल ट्वाइस. ये 2 OH लगे हुए हैं यहाँ पे. और CCl3CHO यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है. CCl3CHO साथ क्रिएशन होती है तो CCl3 और एक H, CCl3 और एक H, इससे तो बन जाएगा क्या? क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CHCl3. ठीक है, और कैल्शियम फॉर्मेट की फॉर्म में ये कंपाउंड बाहर निकल जाएगा. Ca का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. जस्ट मिनट में आपको फिर से समझाता हूँ. ये तो बन गया क्लोरोफॉर्म और इधर से C डबल बॉन्ड O और ये CHO, इससे बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट. ओके, सो आवर रिक्वायरमेंट इज दिस ट्वाइस मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लियर? इफ एसीटोन इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, जस्ट अ मिनट. एसीटोन इज यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ इथाइल अल्कोहल. रिएक्शन विल प्रोसीड एज फॉलोज. मैंने आपको क्या कहा था? 2 चीज़ से बना सकते हैं हम क्लोरोफॉर्म. एक अल्कोहल से बना सकते हैं, एक एसीटोन से बना सकते हैं. अगर हम एसीटोन लेंगे तो देखो क्या होता है रिएक्शन के अंदर. ये इसकी फर्स्ट स्टेप तो यही है एसीटोन के साथ में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन वाटर से होती है तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अगर वाटर से होती है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा. अब हमने यहाँ क्या लिया? एल्कोहल की जगह पे क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया. वही नेसेंट ऑक्सीजन क्लोरीन के. तो यहाँ पे क्या बना? ट्राइक्लोरो एसीटोन. CCl3 आ गया यहाँ पे. तीनों H Cl से रिप्लेस हो गए और इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है. ये वाली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, दैट वन इज अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, देन इट फॉर्म क्लोरोफॉर्म. ओके, चाहे हम अल्कोहल लें चाहे एसीटोन लें, उससे हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं. देखिए, इसमें एक डायग्राम से समझा रखा है कि आपके सामने एक राउंड बॉटम फ्लास्क है. ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको सैंड बाथ पर रखा हुआ है. डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे, पहले सैंड गर्म हो रही है, उसके बाद में ये इसके अंदर का केमिकल गर्म हो रहा है. अल्कोहल है, ठीक है ना, और आपके सामने एक ब्लीचिंग पाउडर है, वाटर है, इन सबको हम हीट कर रहे हैं. हीट करने के बाद में यहाँ से क्लोरोफॉर्म निकलेगी, कंडेंस होगी. वो कंडेंस होने के बाद में यहाँ वो इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और वाटर दोनों यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि वाटर भी तो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, बट क्लोरोफॉर्म इज़ हैवियर देन वाटर, तो वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम बाद में आउटलेट से बाहर निकाल देंगे. दैट इज़ अ मेथड बाय वी कैन फॉर्म क्लोरोफॉर्म. अनदर मेथड, वो जो हमने पढ़ा था अभी, वो लैब प्रिपरेशन थी. ठीक है ना. नाउ दैट इज फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl. इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl. ठीक है, देखो इसकी हेलोफॉर्म रिएक्शन किस तरीके से होती है. NaOH की रिएक्शन जब क्लोरीन से होती है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है.
ये भी आपको बनाना सिखा दिया यहाँ पर कि NaOH रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो इस एल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है NaOCl से, तो ये क्या बना CH3 कीटोन बन गया। मतलब कि किसी भी मेथड से हमको इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है कीटोन के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में देखो क्या हुआ, ये जो कीटोन था जो ऊपर बनाया भी कीटोन, इसकी रिएक्शन फिर से NaOCl से होती है, अनदर एक्सिस ऑफ NaOCl। तो हुआ क्या है, सब जगह वही हो रहा है, यहाँ से तीनों हाइड्रोजन CCl3 से रिप्लेस हो गए, 3 Cl से रिप्लेस हो गए, और बाद में लास्ट में इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो क्लोरोफॉर्म बन गया और RCOONA बन गया। KOH के साथ हमने ऊपर रिएक्शन कराई थी तो पोटेशियम फॉर्मेट बाहर निकला था, यहाँ पे भी सोडियम ऑक्सीलेट बाहर सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया यहाँ पे। इस तरीके से हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, स्टेप्स वही हैं। अब आता है फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। देखिए क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक ही कंपाउंड के ऊपर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए CCl3CH, CH जो है इसमें 2 OH प्रेजेंट है। ठीक है, और किसी भी कंपाउंड पर जब 2 OH होते हैं तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसकी जब NaOH के साथ रिएक्शन करा गई, एक्वस NaOH के साथ में वाटर में डिजोल्व करके NaOH को इसमें इसके साथ रिएक्शन करा गई तो इसमें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, HCl सोडियम फॉर्मेट बाहर निकल गया और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो हम इससे भी क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं CHCl3 की फॉर्म में। एक और है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन किया जाए, मतलब कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इसमें एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक जैसे ही एक हाइड्रोजन अंदर जाएगी तो एक Cl बाहर निकलेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये CHCl3 और HCl बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन जो है वो पार्शली रिडक्शन रिएक्शन है, तो और किसकी प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट आयरन प्लस वाटर वेपर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में होता है यहाँ पर। बाय क्लोरोनेशन ऑफ मीथेन, दैट रिएक्शन इज इन योर 10th क्लास कि मीथेन की रिएक्शन, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक, है ना। मीथेन की रिएक्शन Cl2 से कराई तो CH3Cl बन गया, है ना, क्लोरोमीथेन बन गया। इसकी वापस क्लोरोनेशन किया इस क्लोरोमीथेन का तो CH2Cl2 बन गया। इसका वापस से क्लोरोनेशन किया तो इस थर्ड स्टेप में जाके क्लोरोफॉर्म बनता है, और थर्ड स्टेप में फिर से क्लोरोनेशन कर दोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड करेंगे। मतलब चारों हाइड्रोजन जो है वो चारों क्लोरीन से रिप्लेस हो गई, तो दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, बट हमारे काम का क्या है, थर्ड स्टेप हमारे काम की, तो हमें इस स्टेप को थर्ड तक लाना होगा। ठीक है, ये है आपके क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन फॉर्म क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो है आप अच्छे से जानते हो, क्लोरोफॉर्म का यूज़ बेहोश करने में काम आती है। ठीक है ना, एनेस्थीसिया में इसको यूज़ में लिया जाता है क्लोरोफॉर्म का। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, कलरलेस होता है, वाटर के अंदर पार्शली सोल्यूबल है, हैवियर देन वाटर। अभी आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट में देखा वाटर से नीचे बैठा होता है ये। इट इज़ सोल्यूबल इन ईथर एंड एल्कोहल। क्लोरोफॉर्म कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, ओके, बेहोश करने में काम आता है ये। अब देखिए प्योर क्लोरोफॉर्म की टेस्टिंग कैसे की जाए कि कौन सा क्लोरोफॉर्म प्योर है। ये जो कंपाउंड, ये जो है लिखा हुआ है आपका टॉपिक, प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। प्लीज़ इसके ऊपर कंसंट्रेट करना, अच्छी तरह से रिएक्शन को याद करना। हाउ कैन वी टेस्ट द क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, देखिए कैसे कर जाता है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन को टेस्ट कैसे किया जाता है ना। क्लोरोफॉर्म जो एक ऐसा कंपाउंड है जिसको व्हाट वी से डार्क कलर की बोटल्स में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को हमेशा लैब के अंदर बहुत डार्क कलर की बोटल्स में ऊपर तक फिल करके रखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, आपके क्वेश्चन के आगे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर एक बार अपन बोतल को अगर ओपन करेंगे तो फिर हवा लग जाएगी, और हवा लग गई उसमें से तो ख़राब हो जाएगा वो। ठीक है, तो होता क्या है, जब क्लोरोफॉर्म की बोतल को ओपन किया जाता है तो वो ख़राब हो जाती है। तो वो ख़राब होने के बाद में उसमें क्या बनता है, HCl बनता है। जैसे ही वो ख़राब होता है ना क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म ख़राब होगा तो उसमें HCl बनेगा। तो उसी HCl को हम अगर डिटेक्ट कर लें, उसी HCl का हम टेस्ट कर लें कि हाँ इसमें HCl बना है, तो हमको पता लग जाएगा हाँ ये क्लोरोफॉर्म क्या है, प्योर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो क्लोरोफॉर्म है जिसके अंदर HCl प्रेजेंट है, जो ख़राब हो चुका है ना, तो उसके अंदर हम AgNO3 डाल देंगे, सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके और जिसके अंदर HCl प्रेजेंट है AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। अगर वो प्योर हुआ अगर वो क्लोरोफॉर्म प्योर हुआ तो उसमें HCl नहीं होगा। HCl नहीं होगा तो AgNO3 डालोगे आप तो AgCl की वाइट प्रोपर्टी नहीं आएगी, और अगर उसमें AgCl की वाइट प्रोपर्टी आ रही है दैट मीन्स दैट इज़ इम्प्योर क्लोरोफॉर्म। ओके, इस रिएक्शन को याद करनी है बस आपको कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl इट गिव्स AgCl प्लस HNO3, वाइट पीपीटी ऑप्टेंट हो गया आपको। ओके, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए क्लोरोफॉर्म की हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ
क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। In the presence of light and atmosphere oxygen, chloroform is oxidized into poisonous gas carbon tetrachloride. Carbonyl chloride. Its name is phosgene. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का आप ही समझ लिए, SN1 SN2 के बाद में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो ये वाला है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन इस पे बनता है वो क्वेश्चन कि वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, कि एक तो लाइट की एब्सेंस रहनी चाहिए, ठीक है, और एक अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए उस बॉटल के अंदर। तो जब क्लोरोफॉर्म जो है, ये वाली जो क्लोरोफॉर्म है, ये ऑक्सीजन के साथ में और लाइट के साथ में रिएक्शन करती है, इन दोनों के प्रेजेंस में उसमें एक हाईली पॉइजनस गैस बनती है COCl2, जिसका नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है इसका? फॉस्जीन गैस बनती है। इसका केमिकल नेम है कार्बोनाइल क्लोराइड। ये इसका केमिकल नेम है कार्बोनाइल क्लोराइड एंड इट्स कॉमन नेम इज़ फॉस्जीन, ठीक है। अब देखो आप, इसके अंदर फॉस्जीन के साथ में क्या बन रहा है? HCl। पता चल गया आपको इम्प्योरिटी का इंडिकेटर, वो है HCl। अब इसी क्लोरोफॉर्म वाली बोतल के अंदर अगर हम AgNO3 डालेंगे तो वाइट पीपीटी शो कर देगा, ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ ये लाइन लिखी हुई देखो आप, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स फिल्ड अप टू ब्रिम टू प्रिवेंट दी कॉन्टैक्ट एयर एंड लाइट। फुल ऊपर तक भर के रखा जाता है इसको। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम क्लोरोफॉर्म की बोतल को हमेशा ऊपर तक ही भर के रखेंगे? क्या उसको कभी हम खोलेंगे ही नहीं? क्या उसको हम कभी यूज़ में नहीं लेंगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर हमने उसको यूज़ में ली तो उसका एयर से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, उसका लाइट से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो क्या वो ख़राब हो गई? तो उसका भी एक क्या है, हमारे पास में एक मेथड है कि हम किस तरीके से उस क्लोरोफॉर्म को वापस सही कर सकते हैं। देखो हमको क्या करना है, 1% इथाइल अल्कोहल उसमें डाल देना है। वो जो क्लोरोफॉर्म है ना, उसके अंदर जो आप हम सोच रहे हैं कि ये ख़राब हो गई है, जिसके अंदर पॉइजनस गैस बन गई है, फॉस्जीन गैस बन गई है, उसमें आपको 1% इथाइल अल्कोहल डालना है। 1% का मतलब है बहुत कम, एथिल अल्कोहल की मात्रा उसमें कम, क्वांटिटी बहुत कम हो। तो ये है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH C2H5OH। वो जो अंदर COCl2 है, COCl2 फॉस्जीन गैस बन गई है अंदर, जो पॉइजनस गैस है उसका फॉर्मूला क्या था? COCl2 था। वो फॉस्जीन गैस अंदर जैसे ही हम अल्कोहल डालेंगे उसके साथ में रिएक्शन करके और एक डाई इथाइल कार्बोनेट बनाएगा। HCl बाहर निकल जाएगा, जो डॉटेड लाइन से बता रखा है, ट्वाइस HCl बाहर निकल गया, और C का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट OC2H5 से हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बन गया डाई इथाइल कार्बोनेट एंड दैट इज़ नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। डाई इथाइल कार्बोनेट बनेगा जो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हालांकि कम आता ही, कि हाउ कैन वी रिमूव दी पॉइजनस गैस फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से हम रिएक्शन करके उसको बता सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कर दें, मतलब किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें से एक Cl निकल जाएगी HCl की फॉर्म में, और क्या बन जाएगा? CH2Cl2। जैसे अभी आप ऊपर देखा था अभी आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, तो ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। क्लोरोफॉर्म का अगर और रिडक्शन किया आपने हाईली, है ना, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया आपने 6H की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ ए कन्वर्जन, ओके, बाय वी कैन क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन। अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई जाए एसीटोन के साथ में, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको ऐसे लिखा हुआ है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एसीटोन है। तो क्या होगा देखो आप, CH3C है ना, और CCl3, ये वाला जो H है, देखो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा H के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो H जो है, ये वाला जो H था, ये डायरेक्टली किससे अटैच हो जाएगा? इस माइनस O से, है ना। जैसे ही H O से माइनस होगा तो देखो OH यहाँ आ गया। अब ये वाला जो कार्बन है, जब ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया था तो ये माइनस हो गया था ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन क्या हो गया था? माइनस। तो इस कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। इस प्लस वाले कार्बन पर किसने अटैक किया? CCl3 ने। O से तो जुड़ गया, H तो जुड़ गया O से, तो बन गया OH, और ये वाला जो CCl3 था इस कार्बन पर अटैच हुआ तो ये बन गया CCl3। इसका नाम है क्लोरीटोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीटोन। हाइप्नोटिक ड्रग है ये, ठीक है ना, दैट इज़ अ हाइप्नोटिक ड्रग विच इज़ अ क्लोरीटोन। ध्यान रखना, अभी एक केमिकल और आएगा आगे क्लोरीटोन के जैसा ही, देखो आप आगे, उसको मैं आपको तो पहले बताया था, उसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। नाइट्रेशन रिएक्शन से बनता है वो। अगर क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन किया जाए HNO3 के साथ में, है ना, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में क्लोरोफॉर्म का अगर नाइट्रेशन किया जाए तो क्या होगा? देखो आप, ये HNO3 है, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है HNO3 का, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सके अपन। ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, क्या बना? CCl3NO2,
एच ये वाला एच निकल गया है ना, और क्या बन गया इसके अंदर CCl3NO2, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। पहले बना था वो था क्लोरीटोन है ना, वो था क्लोरीटोन, एंड दैट इज अ क्लोरोपिक्रीन दैट इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ वार गैस, युद्ध गैस के रूप में इसको काम में आता है सोल्जर्स को पीछे करने में, भगाने में। सो दैट इज द क्लोरीटोन, सॉरी दैट इज नॉन एज क्लोरोपिक्रीन। ओके, और जो हिप्नोटिक ड्रग थी वो थी क्लोरीटोन है ना। ये दो रिएक्शन हो गई, एक बीच वाली रिएक्शन छूट गई थी, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म का आपने KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस किया, देखो ये KOH के 3 मॉलिक्यूल हैं, एक क्लोरोफॉर्म का इधर मॉलिक्यूल है, इसके साथ में जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, KCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल आते हैं, KCl डॉटेड लाइन में बता रखा है देखो, और जो C है डायरेक्ट से जुड़ जाएगा। अब एक ही कंपाउंड पे 3 OH लगे हुए हैं तो ये तो अनस्टेबल हो गया, तो इसकी जब रिएक्शन होती है तो इसमें क्या बनता है, देखो फॉर्मिक एसिड बनता है, C डबल बॉन्ड OH, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है जिससे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो इसकी हाइड्रोलाइसिस से फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको इन रिएक्शंस को अच्छी तरह याद करना है, लिख के इनको याद करना है, जिससे आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए, बिकॉज दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको एक बार पढ़ लेने पे याद हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, हमको बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके ये हमको याद होती है और अच्छी तरह इसको हम लर्न कर पाते हैं फिर। ओके, सो दैट इज़ अ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखो, क्लोरीनेशन, ये तो आपने ऊपर पढ़ी ली, इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, Cl का रिमूव हो जाएगा है ना। इसके बाद में आपकी रिएक्शन आती है इसके अंदर, चलो इस रिएक्शंस को अब मैं आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इसके बाद वाले में सिल्वर वाली रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। ठीक है, ओके, थैंक यू।